دوستوں، کسی کی طرف سے مسترد ہونا، ریجیکٹ ہونا، یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ وہ جھٹکے ہیں جو سیدھے سینے میں لگتے ہیں۔ ایک لمحہ پہلے سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، اگلے لمحے سب کچھ ختم۔ ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے آپ کی کہانی کا بٹن آف کر دیا ہو، بغیر پوچھے، بغیر وضاحت کے۔ پیٹ میں خالی پن، سینے میں عجیب سا دباؤ، اور دماغ میں ایک ہی سوال گھومتا رہتا ہے، آخر مجھ میں کمی کیا تھی؟ آپ فون کو بار بار دیکھتے ہیں، آن لائن اسٹیٹس چیک کرتے ہیں، پرانے میسیجز پڑھتے ہیں، اور دل کہتا ہے کہ شاید ایک میسج اور بھیج دوں، شاید اس بار وہ نرم پڑ جائیں، رک جائیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ اپنی عزت ہار جاتے ہیں، اپنی ویلیو گنوا بیٹھتے ہیں، کیونکہ وہ درد روکنا چاہتے ہیں، وہ اس پریشانی سے نکلنا چاہتے ہیں فوراً۔ لیکن آج میں آپ کو کچھ مختلف بتانے والا ہوں۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہو جاتی، یہ تو صرف اسکرپٹ کا ایک موڑ ہے۔ انہوں نے ایک فیصلہ کیا، اب فیصلہ کرنے کی باری آپ کی ہے۔ آپ پیچھے نہیں بھاگیں گے، آپ وضاحتیں نہیں دیں گے، اب لمبی جذباتی تقریریں نہیں کریں گے، آپ کھیل کا لیول ہی بدل دیں گے۔ ریجیکشن کو زخم سمجھنا بند کریں، یہ ایک وقتی جھٹکا ہے، آپ اسے طاقت میں بدل سکتے ہیں۔ سوچیں کیا ہوگا اگر چند ہفتوں بعد وہ آپ کو یاد کریں، آپ کی کمی محسوس کریں، اور حیران ہو کہ آپ اتنی خاموشی سے کیسے آگے بڑھ گئے ہیں۔ کیا ہو اگر اس بار آپ انتظار کرنے والے نہ ہوں، بلکہ وہ ہوں جس کا انتظار کیا جاتا ہے، جس کو ہر محفل میں، ہر کمرے میں ویلیو دی جاتی ہے، بات کو سنا جاتا ہے۔ یہ ویڈیو اسی تبدیلی کے بارے میں ہے۔ اگر آپ واقعہ خود کو اپ گریڈ کرنے کے لیے تیار ہیں تو دل سے کہیں کہ اب میں پیچھے نہیں بھاگوں گا، کیونکہ آج سے کھیل بدلنے والا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں پارٹ 1، کھیل پلٹنے کا 5 مرحلوں والا منصوبہ۔ دوستو، یہ کسی کو واپس لانے کا سستا فارمولہ نہیں ہے، یہ کوئی جذباتی چال نہیں ہے، یہ آپ کی شخصیت کو اپ گریڈ کرنے کا سسٹم ہے۔ یہ منصوبہ اس لیے نہیں کہ وہ واپس آ جائیں، یہ اس لیے ہے کہ آپ بدل جائیں، آپ کی سوچ بدلے، آپ کی ویلیو بڑھے، آپ کی موجودگی کا وزن بڑھے۔ یہ 5 سٹیپ آپ کو مضبوط بنائیں گے، آپ کو خود مختار بنائیں گے، آپ کو بے نیاز بنائیں گے۔ اور جب انسان اندر سے بدلتا ہے تو باہر کی کہانی خود بخود بدل جاتی ہے۔ یہ کھیل ان کے خلاف نہیں ہے، یہ کھیل آپ کے حق میں ہے۔ سٹیپ 1، مکمل غائب ہو جانا۔ یہ سب سے مشکل قدم ہے اور سب سے طاقتور بھی۔ جب دل ٹوٹتا ہے، انسان کا پہلا رد عمل رابطہ کرنا ہوتا ہے، آواز سننے کی خواہش، ایک آخری وضاحت، ایک آخری موقع۔ لیکن یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ کھیل ہار جاتے ہیں۔ اس لیے پہلا اصول سادہ ہے، مکمل خاموشی، نہ کال، نہ پیغام، نہ سٹیٹس چیک کرنا، نہ سٹوریز دیکھنا، نہ کسی مشترکہ دوست کے ذریعے خبر لینا، نہ ویسے ہی راستہ بدل کر ان کے سامنے آ جانا۔ آپ غائب ہو جائیں، ایسے جیسے اچانک ہوا بدل گئی ہو۔ کم از کم 30 سے 45 دن بغیر کسی بہانے۔ یہ ضد نہیں ہے، یہ انا نہیں ہے، یہ ذہنی ریسیٹ ہے۔ سمجھے ایک بات، آپ کا دماغ ان کی توجہ کا عادی ہو چکا تھا۔ ہر نوٹیفیکیشن ایک ڈوپامین ہٹ تھا، ہر میسج ایک تسلی۔ اب وہ سپلائی بند ہو گئی ہے، اس لیے بے چینی ہو رہی ہے۔ آپ انہیں نہیں، اصل میں اپنی عادت کو مس کر رہے ہیں۔ اور عادت ایسے نہیں ٹوٹتی کہ آپ روز تھوڑا تھوڑا رابطہ رکھیں، عادت تب ٹوٹتی ہے جب سپلائی مکمل بند ہو۔ دوسری طرف وہ توقع کیا کریں گے آپ سے؟ وہ سوچیں گے کہ آپ 2 دن بعد ٹوٹ جائیں گے، رات کو ایک لمبا میسج آئے گا، ہم بات کر سکتے ہیں۔ وہ اسی پوزیشن میں رہنا چاہتے ہیں جہاں وہ فیصلہ کریں اور آپ رد عمل نہیں۔ لیکن جب انہیں کچھ نہیں ملتا، کوئی وضاحت نہیں، کوئی ڈرامہ نہیں، کوئی جذباتی اپیل نہیں، تو طاقت کا توازن بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ خاموشی انسان کے ذہن میں خلا پیدا کرتی ہے اور ذہن خلا برداشت نہیں کرتا۔ پھر سوال جنم لیتا ہے، اتنی خاموشی کیوں؟ کیا وہ واقعہ آگے بڑھ گیا ہے؟ کیا میں اتنا اہم نہیں تھا؟ یاد رکھیں، آپ یہ سب ان کے لیے نہیں کر رہے، آپ اپنی بحالی کے لیے کر رہے ہیں، اپنی عزت واپس لینے کے لیے، اپنے اعصاب مضبوط کرنے کے لیے۔ یہ مرحلہ آپ کو جذباتی انحصار سے آزاد کرے گا، اور جب آپ اندر سے آزاد ہوتے ہیں تب بھی اصل کھیل شروع ہوتا ہے۔ کیونکہ خاموشی کے بعد آتا ہے وہ مرحلہ جہاں آپ صرف غائب نہیں ہوتے بلکہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر واپس آتے ہیں۔ سٹیپ 2، خاموش واپسی۔ اب ایک غلطی مت کیجیے گا، غائب ہونا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کمرے میں بند ہو جائیں۔ خاموشی کا مقصد رکنا نہیں، تیار ہونا ہے۔ اب آپ بیٹھے نہیں رہیں گے، آپ زندگی بنائیں گے، اصلی زندگی، فلٹر والی نہیں، ڈرامائی نہیں، کسی کو جلانے کے لیے نہیں۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں آپ اپنی توانائی واپس لیتے ہیں۔ سب سے پہلے لوگوں سے دوبارہ جڑیں، وہ دوست جنہیں آپ نے نظر انداز کیا تھا، وہ محفلیں جنہیں آپ نے چھوڑ دیا تھا۔ یاد رکھیں، تنہائی سوچ کو گہرا کرتی ہے، لیکن زیادہ تنہائی انسان کو کمزور بھی کر دیتی ہے۔ پھر اپنی باڈی پر کام کریں، بدلہ لینے کے لیے نہیں، خود کو بنانے کے لیے۔ جم جانا، واک کرنا، مارشل آرٹ سیکھنا، جو بھی آپ کو ڈسپلن سکھائے، کیونکہ اصل کشش صرف چہرے سے نہیں آتی، ڈسپلن سے آتی ہے۔ پھر کوئی نیا مشغلہ،
कोई हुनर, कोई कोर्स, कोई साइड प्रोजेक्ट। जब इंसान मसरूफ होता है तो वो कम बेचैन होता है। अब बात करते हैं सोशल मीडिया की। यहाँ ज्यादातर लोग गलती करते हैं, लंबे कैप्शन, छुपे हुए तंज, बिलवास्ता पैगामात। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप ऐलान नहीं करेंगे कि मैं खुश हूँ, आप सिर्फ जिंदगी की झलकियां दिखाएंगे। एक तस्वीर दोस्तों के साथ, एक वीडियो किसी सरगर्मी की, एक लम्हा जहां आप हंस रहे हो। कोई वजाहत नहीं, कोई इशारा नहीं, बस हकीकत। याद रखें, इंसान फितरी तौर पर उस चीज की तरफ खिंचता है जो उसे मुकम्मल तौर पर दस्तयाब न हो। जब वो देखेंगे कि आप मसरूफ हैं, मसनूई नहीं बल्कि सच में मसरूफ हैं, जब वो महसूस करेंगे कि आप उनके बगैर भी मुकम्मल हैं, हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तो उनके ज़हन में मुवाजना शुरू होगा। वो सोचेंगे कि क्या मैंने जल्दी फैसला कर लिया। ये वो मकाम है जहाँ कहानी आहिस्ता आहिस्ता पलटती है। लेकिन असल ताकत तब आएगी जब वो दोबारा राब्ता करेंगे और आपका रद्द-ए-अमल पहले जैसा नहीं होगा। स्टेप 3, अधूरा छोड़ने की ताकत। अब वो लम्हा आता है जिसका ज्यादातर लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। फोन बजता है, नोटिफिकेशन आता है, नाम स्क्रीन पर ज़ाहिर होता है, सादा सा पैगाम, कैसे हो। ये कोई आम मैसेज नहीं, ये टेस्ट है। दुनिया आपको चेक कर रही है कि आप वाकई बदले हैं या सिर्फ ड्रामा कर रहे थे। यहाँ ज्यादातर लोग फिसल जाते हैं। फौरन लंबा सा जवाब, दिल की बातें, छुपी हुई शिकायतें या पुरानी यादों का जिक्र। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप गर्मजोश रहें, पुरसकून, मुहज़्ज़ब लेकिन मुख्तसर। याद रखें, आपका मकसद दोबारा पुराना रिश्ता जिंदा करना नहीं, आपका मकसद अपनी नई वैल्यू बरकरार रखना है। बातचीत फ्लो में आएगी, हंसी भी हो सकती है, पुराने दिनों का जिक्र भी हो सकता है। यहाँ सबसे अहम लम्हा आएगा जब गुफ्तगू अपने अरूज पर हो, जब तवानाई अच्छी हो, जब उन्हें लगे कि सब कुछ फिर से पहले जैसा हो सकता है। उस वक्त आप ब्रेक लगाएंगे। सादा सा जुमला, अच्छा लगा बात करके, अभी एक काम है, बाद में बात करते हैं। और बस, कोई वजाहत नहीं, कोई लंबी माजरत नहीं, आपने गुफ्तगू अधूरी छोड़ दी। इंसानी दिमाग अधूरी चीजों को पकड़ कर रखता है। नामुकम्मल कहानियां, अधूरी फिल्में, रुके हुए मुकालमे, दिमाग उन्हें मुकम्मल करना चाहता है। जब आप हमेशा दस्तयाब होते हैं तो आम हो जाते हैं। जब आप अपनी दस्तयाबी को कंट्रोल करते हैं तो आप दिलचस्प बन जाते हैं। अब किरदार बदल चुके हैं। पहले आप इंतजार करते थे, अब वो इंतजार करेंगे। पहले आप वजाहत चाहते थे, अब वो मजीद बात चाहेंगे। आप कोई खेल नहीं खेल रहे, आप कोई चाल नहीं चल रहे, आप बस अपनी रफ्तार को कंट्रोल कर रहे हैं। और यही कंट्रोल कशिश पैदा करता है। लेकिन असल ताकत अभी बाकी है, क्योंकि अगला मरहला इस ताल्लुक की तारीफ ही बदल देगा। स्टेप 4, रिश्ते की नई तारीफ। ये वो मकाम है जहाँ ज्यादातर लोग सब कुछ खराब कर देते हैं। कुछ दिन बातचीत चलती है, लहजा नॉर्मल हो जाता है, फिर अचानक एक जुमला आता है, शायद हम सिर्फ दोस्त ही ठीक हैं। ये सुनकर पुराना आप क्या करता है? दिल तेज धड़कता है, फौरन वजाहत शुरू, नहीं हम इससे ज्यादा थे, मैं सिर्फ दोस्त नहीं बन सकता। यानी आप साबित करने लगते हैं कि आपको क्यों अपग्रेड किया जाए। और यही वो लम्हा होता है जहाँ ताकत मुकम्मल तौर पर उनके हाथ में चली जाती है। लेकिन नया आप मुख्तलिफ हैं, आप बदल चुके हैं। आप सांस लेते हैं, चेहरा पुरसुकून रखते हैं, आवाज हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, और कहते हैं, हाँ शायद यही बेहतर है, मैंने भी यही सोचा था और मैं भी आपसे यही बात करने वाला था। बस, न तलखी, न ड्रामा, न अंदर का तूफान बाहर। आपने उनका दिया हुआ लेबल छीन कर अपना लिया। सोचें, जब वो कहते हैं कि हम दोस्त हैं, तो दरअसल वो ताकत का ऐलान कर रहे होते हैं। वो बता रहे होते हैं कि फैसले का इख्तियार उनके पास है। लेकिन जब आप बगैर मुज़ाहमत के मान लेते हैं तो वो ऐलान बेमैनी हो जाता है। अब वो वह ताकतवर फरीक नहीं रहे। उन्होंने आपको दोस्त जोन में डालने की जो बर्तरी महसूस की थी वो खत्म हो जाती है। और दिलचस्प बात यह है कि इंसान को वो चीज कम पुरकशिश लगती है जो मुकम्मल तौर पर उसके कंट्रोल में हो। जब आप जिद करते हैं वो मजबूत रहते हैं, जब आप इत्तेफाक करते हैं वो उलझन में पड़ जाते हैं। अचानक उन्हें वो पोजीशन इतनी खास नहीं लगती, क्योंकि अब ये उनका फैसला नहीं रहा, ये आप दोनों का मुश्तरका फैसला बन गया है। और यही फ्रेम बदलना है। आपने ताल्लुक की तारीफ बदल दी, और जब तारीफ बदलती है तो जज्बात भी नई सिमत लेने लगते हैं। लेकिन अभी एक आखिरी चाल बाकी है जो ताकत के तवाज़ुन को मुकम्मल तौर पर पलट सकती है। स्टेप 5, छोटा सा एहसान। ये आखिरी कदम है और सबसे बारीक भी। ये तब करें जब बातचीत नॉर्मल हो चुकी हो, ना अजीब सा तनाव हो, ना जबरदस्ती की मिठास, सब कुछ सादा, हल्का, दोस्ताना। अब आप एक छोटा सा एहसान मांगेंगे, बहुत छोटा, इतना कि उन्हें सोचना भी ना पड़े। मसलन, आपका म्यूजिक टेस्ट बहुत अच्छा था, वर्कआउट के लिए कोई गाना सुजेस्ट करें, या आप इस टॉपिक पर काफी अच्छे थे, 2 मिनट गाइड कर दें। बस इतना। देखने में आम सा जुमला, लेकिन नफ्सियाती तौर पर गहरा असर। इंसान जब किसी के लिए छोटा सा काम करता है तो उसका दिमाग खुद को एक कहानी सुनाता है, मैंने इसकी मदद की तो यकीनन ये मेरे लिए अहम होगा। ये अजीब लगता है, लेकिन हम अक्सर अपने अमल से अपने जज्बात बनाते हैं। आपने
आपने उनसे मंजूरी नहीं मांगी, आपने उनकी राय की कदर की। ये फर्क बहुत बड़ा है। मंजूरी मांगना कमजोरी नहीं है, राय लेना एतमाद है। अब ताकत का तवाज़ुन दोबारा बदलता है। पहले वो जाने वाले थे, फिर वो राब्ता करने वाले बने, अब वो हिस्सा डालने वाले बन गए। वो इस ताल्लुक में दोबारा सरमाया लगा रहे हैं, चाहे छोटा ही सही। और इंसान जिस चीज में सरमाया लगाता है उसे आसानी से छोड़ता नहीं। लेकिन याद रखें, ये जबरदस्ती का जाल नहीं। अगर वो दिलचस्पी ना दिखाएं, आप पीछे नहीं पड़ेंगे। आपने अपना फ्रेम मजबूत कर लिया है। ये एहसान दरअसल एक इशारा है कि आपको उनकी जरूरत नहीं, लेकिन आप उनकी कदर करते हैं, और यही इम्तिजाज कशिश पैदा करता है। अब खेल मुकम्मल हो चुका है, लेकिन आखिरी और सबसे अहम बात बाकी है कि कहें कि ये ताकत हद से बढ़कर जहर न बन जाए। अहम वार्निंग, ये सब तब काम करेगा जब आप अंदर से सच्चे हों। अगर आप सिर्फ चाल चल रहे हो, सिर्फ उन्हें जलाने के लिए बदल रहे हो, लेकिन रात को अभी भी उन्हीं का इंतजार करते हैं, तो यकीन करें वो महसूस कर लेंगे। इंसान अपने अल्फाज से कम और एनर्जी से ज्यादा समझा जाता है। अगर आपकी खामोशी में बेचैनी होगी, आपकी मुस्कुराहट में दिखावा होगा, तो उन्हें फौरन महसूस हो जाएगा और सारा असर खत्म हो जाएगा, और फिर जो थोड़ा बहुत एतमाद बाकी है वो भी टूट जाएगा। याद रखें, ये तरीके किसी लंबे और सेहतमंद रिश्ते की बुनियाद नहीं है। असल बुनियाद हमेशा सच्चाई, वाज़ेह बातचीत और बामी इज्जत होती है। ये सारी हिकमत अमली सिर्फ एक मकसद के लिए, आपको मजबूत बनाने के लिए। असल जीत ये है कि आपकी जिंदगी इतनी भरपूर हो जाए, इतनी मुस्तहकम हो जाए कि अगर वो वापस भी आए तो वो आपकी जरूरत ना हो, आपकी पसंद हो। फर्क समझे, जरूरत कमजोरी से आती है, पसंद ताकत से। अगर वो दोबारा दरवाजा खटखटाए तो इस बार आप पुरानी जगह पर खड़े ना हो। नई शरायतों, नई हदूदों, नया म्यार हो। आप बात करें लेकिन झुक कर नहीं। आप मौका दें लेकिन खुद को खो कर नहीं। ताकत की जगह से फैसला करें, न कि पुरानी बेबसी से। क्योंकि जब आप वाकया बदल जाते हैं तो या तो रिश्ता बेहतर होता है या आप उस रिश्ते से ऊपर उठ जाते हैं, और दोनों सूरतों में आप जीत जाते हैं। दोस्तों, मुस्तैद होने से बेनियाजी तक का सफर आसान नहीं होता। ये एक दिन का फैसला नहीं, ये रोज का इंतखाब है। हिम्मत चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, और सबसे बढ़कर खुद के साथ सच्चाई चाहिए। शायद आपने शुरू में खुद को एक ऐसे किरदार के तौर पर देखा जिसे किसी और ने कहानी से निकाल दिया, जैसे फैसला उनका था और अंजाम भी। लेकिन असल सच कुछ और है। वो अपने बारे में फैसला कर सकते हैं, आप अपने बारे में फैसला करेंगे। आप किरदार नहीं, आप अपने आप के मुसन्निफ हैं। कहानी अब भी आपके हाथ में है। जो दर्द आप महसूस कर रहे हैं वो कमजोरी नहीं, वो फ्यूल है, वो ईंधन है। जो खामोशी आप इख्तियार करते हैं वो खालीपन नहीं, वो ताकत है। और जो नई जिंदगी आप बनाएंगे वो बदला नहीं, वो इर्तिका है। उनके पछताने का इंतजार करना छोड़ दें। लोग तब पछताते हैं जब उन्हें एहसास हो कि उन्होंने क्या खोया है, और वो एहसास आपके पीछे भागने से नहीं आएगा, आपके आगे बढ़ने से आएगा। इतने मजबूत बन जाएं कि अगर वो दोबारा दरवाजा खटखटाएं तो फैसला आप करें, ना कि आपके जज्बात। इतने मुकम्मल बन जाएं कि अगर वो वापस आए तो वो आपकी जरूरत ना हो, आपकी पसंद हो। याद रखें, ये खेल किसी को हराने का नहीं, ये खुद को बनाने का है, खुद पर काम करने का है। खेल शुरू हो चुका है, इस बार चाल आपकी है। दोस्तों, अगर आज की वीडियो ने आपको एक नया जाविया दिया है, अगर आपने खुद को कमजोर नहीं बल्कि ताकतवर महसूस किया है, तो इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक पैगाम देता है कि आप खुद पर काम करने के लिए संजीदा हैं। इसे शेयर करें उस दोस्त के साथ जो इस वक्त रिजेक्शन के दर्द से गुजर रहा है। शायद ये वीडियो उसके लिए मोड़ साबित हो। और अगर आप ऐसे ही गहरे, ताकतवर और हकीकत पर मबनी मौज़ूआत सुनना चाहते हैं तो चैनल वारिस की बात को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, क्योंकि ये सफर अकेले तय नहीं होता। हम सब सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और आखिर में कमेंट में सिर्फ एक लफ्ज लिखें, ताकत, ताकि आप खुद को याद दिलाएं आप कमजोर नहीं, आप बदल रहे हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।